Hello, listening friends. We are delighted that you have joined us one more time. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ शामिल हैं। Some of you have written to us and said that you would like this program to be more often than just once a week. आप में से कईयों ने हमें लिखकर कहा है कि अच्छा होगा यदि यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार के बजाय अधिक दिन दिया जाए। And we're going to try everything possible to respond to your request. और हम आपके निवेदन के उत्तर में हर संभव प्रयत्न करेंगे। Once again, I want to thank you for your writing to us एक बार फिर से हमें लिखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ and look forward to hearing from more of you. और हम आप में से और अधिक लोगों से सुनने की प्रतीक्षा में हैं। We have been going through a series of messages entitled Know Your Real Enemy. हम अपने वास्तविक शत्रु को जानिए नामक संदेश श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। And we were talking in the last message about what does your enemy think of you. और अपने पिछले संदेश में आपका शत्रु आपके विषय में क्या सोचता है, इस विषय पर हम बात कर रहे थे। And we talked about the three areas in which Satan attacks. और हमने 3 क्षेत्रों के विषय में बात की जिन पर शैतान हमला करता है। Do you remember what they are? आपको याद है वो कौन से थे? Okay. Then we're going to go into the second one. ठीक है, फिर हम दूसरे पर चलते हैं। We discussed the first one in the last message, पहले पर हमने पिछले संदेश में ध्यान किया था, which is to do with the flesh. जिसका संबंध शरीर के साथ है। The second temptation has to do with possession and power. दूसरी परीक्षा का संबंध धन संपत्ति और शक्ति के साथ है। Satan failed in the first one, पहली परीक्षा में शैतान नाकाम रहा, so he goes to the second one. इसलिए वो दूसरी का प्रयोग करता है। He took Jesus into Jerusalem and they stood right there on top of the temple. वो यीशु को यरूशलेम में ले गया और दोनों वहां मंदिर के शीर्ष पर खड़े हैं। And that was the highest place in the city of Jerusalem. और यरूशलेम शहर में वो सबसे ऊंचा स्थान था। It was more than 500 feet high from the Kidron Valley. ये किद्रोन की घाटी से 500 फुट से भी ज्यादा ऊंचा था। And there on top of the hill, और वहां पहाड़ के शीर्ष पर Satan said to Jesus, शैतान ने यीशु से कहा, Jesus, यीशु, you told me that man does not live by bread alone, तुमने मुझे बताया कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहता, but only by the word of God. परंतु केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। I heard you. मैंने तुम्हारी बात सुनी। You are in perfect obedience to the Father, and I understand that. तुम पिता के प्रति उत्तम आज्ञाकारिता में हो और मैं इसे समझता हूँ। I want you to notice the deception here. मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ छल पर ध्यान दें। So he continues, सो वो जारी रहता है। well, I couldn't get you to declare your independence from the Father, खैर, मैं तुमसे पिता से तुम्हारी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करवा पाया, and you told me that you live by the word of God. और तुमने मुझे बताया कि तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीते हो। Okay, let's move into another area. तो ठीक है, चलो अगले क्षेत्र में चलते हैं। Satan doesn't come to him from nowhere. शैतान उसके पास ऐसे ही कहीं से भी नहीं आ गया, He comes systematically. वो योजनाबद्ध तरीके से आता है। If he fails in one area, he moves on to the next. यदि वो एक जगह पर असफल हो जाता है तो वो उससे अगले क्षेत्र में चला जाता है। Satan saw Jesus using the Bible, so he uses the Bible too. शैतान ने यीशु को बाइबल का प्रयोग करते हुए देखा, सो वो भी बाइबल का प्रयोग करता है। Satan uses the Bible by saying, शैतान ये कहते हुए बाइबल इस्तेमाल करता है, okay, now I want you to jump from this high wall. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि तू इस ऊंचे स्थान से कूद जा। First of all, you're going to make a headline news. सबसे पहले तुम एक मुख्य समाचार बन जाओगे। But I want to tell you something else, Jesus. परंतु यीशु, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाहता हूँ। I can quote the scripture too. मैं भी वचन का उच्चारण कर सकता हूँ। My listening friend, listen to me. मेरे श्रोता मित्र, मुझे ध्यानपूर्वक सुनिए। Anyone who tells you that the devil does not believe, does not understand the word of God. कोई भी जो आपसे ये कहता है कि शैतान विश्वास नहीं रखता, तो वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझता। The word says, वचन कहता है, he believes and he trembles. वो विश्वास करता है और थरथराता है। Satan said, शैतान ने कहा, now I want to quote the word of God to you. अब मैं तुम्हारे लिए वचन में से बोलता हूँ। And he quoted from the Psalms. और उसने भजन संहिता में से बोला, It says, he shall give his angels charge over you, and they will bear you up on their hands, lest any time you dash your foot against a stone. ये कहता है, वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आदेश देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लें,
न हो कि तुम्हारे पैर को पत्थर से चोट लगे। As if to say to Jesus, जैसे कि यीशु से कह रहा हो, here's a promise from the Word of God, why don't you claim it? ये देखो परमेश्वर के वचन में से एक वादा, तुम ये क्यों नहीं मांग लेते? That's reasonable, isn't it? ये उचित है क्या नहीं है? To claim the promise. वादा मांगने के लिए Whatever your eye perceives, you receive. जो कुछ भी आपकी आंख देखती है आप ग्रहण कर लें। But that's the gospel of greed. परंतु ये लोभ का समाचार है। Some people are saying that if you name a promise and you claim that promise, it's yours. कुछ लोग कहते हैं कि यदि आपको किसी वादे का नाम पता है और आप इसे मांगते हैं तो ये आपका हो जाता है, But this is wrong. परंतु ये गलत है। In fact, the whole advertising industry is based around the lust of the eye. बल्कि संपूर्ण विज्ञापन उद्योग ही आंख की अभिलाषा के आसपास स्थापित है। And many of the merchants of human psychology know that if they can display something attractive enough, you will want it. और मानवीय सोच के अधिकतर व्यापारी जानते हैं कि यदि वो कुछ आकर्षक माल प्रदर्शित करें तो आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे। So you would want to buy the thing whether you need it or not. तो आप उस वस्तु को खरीदना चाहेंगे चाहे आपको उसकी आवश्यकता है या नहीं। Because you see it, you feel that you have to have it. क्योंकि आप उसे देखते हैं इसलिए आपको लगता है कि इसे ले ही लेना चाहिए। Even if you have to break some of the biblical principles to do it. यहाँ तक कि चाहे ऐसा करने के लिए आपको बाइबल के कुछ नियम ही क्यों न तोड़ने पड़े। That's exactly what Eve said. बिल्कुल यही हवा ने कहा, I saw and I took. मैंने देखा और ले लिया। Proverbs 27:20 says, नीति वचन 27 अध्याय का 20 पद कहता है, the eyes of man are never satisfied. मनुष्य की आंखें कभी संतुष्ट नहीं होती। The Bible says that he would give his angels charge over you, said Satan. शैतान ने कहा, बाइबल कहती है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आदेश देगा। But the promise was to those who are obedient to God's will, परंतु वादा उनके लिए था जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति वफादार हैं, those who want to live in God's will. उनके लिए जो परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहते हैं। And walking according to the word of God means that you don't put God to the test. और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का अर्थ है कि आप परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालते। And the only time God said test me is in the area of the tithing. और एकमात्र समय जब परमेश्वर कहता है मुझे परखो, वो है दशवांश देने का क्षेत्र। Otherwise you shall not tempt the Lord your God. नहीं तो आपको प्रभु अपने परमेश्वर को नहीं परखना है। And that's what Jesus told Satan. और यही यीशु ने शैतान से कहा। Do you know what would have happened had Jesus claimed that promise? आप जानते हैं कि यदि यीशु ने उस वादे का दावा किया होता तो क्या होता? He would have put God the Father to the test. तो उसने परमेश्वर पिता को परीक्षा में डाल दिया होता। He would have fallen into Satan's trap by saying to God, वो शैतान के जाल में फंस जाता यदि परमेश्वर से कहता, God, परमेश्वर, you can only be true if you visibly prove your word. तुम सत्य तभी हो सकते हो यदि तुम प्रत्यक्ष रूप से अपने वचन को प्रमाणित करो। There are people who say that all the time. ऐसे लोग हैं जो हर समय ऐसा कहते हैं, I will not believe until I see with my eyes. जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। But you know what? परंतु आप जानते हैं कि These are the very people, even if they see, they will not believe. यही वो लोग हैं जो चाहे देख भी लें तो भी विश्वास नहीं करेंगे। Jesus did not have to put the Father to the test. यीशु को पिता को परीक्षा में नहीं डालना पड़ा। He did not have to test him as a condition for believing and trusting him. पिता पर भरोसा और विश्वास करने की शर्त के बदले में उसने उसको परीक्षा में नहीं डाला। If he had tried to prove God, he would have been calling God a liar. यदि वो परमेश्वर को प्रमाणित करने का प्रयत्न करता तो वो परमेश्वर को झूठा कहता। And when Satan tries to get you to tempt God, he is getting you to call God a liar. और जब शैतान आपको परमेश्वर को परखने के लिए फंसा लेता है तो वो आपको फंसा रहा है आपके द्वारा परमेश्वर को झूठा कहलवाने के लिए। And in that way, he pulls you down from that perfect high place of trust. और इस तरीके से वो आपको विश्वास के उस उत्तम ऊंचे स्थान से नीचे गिरा देता है। John said there is the lust of the flesh यूहन्ना ने कहा यहाँ शरीर की अभिलाषा है and the lust of the eye और आंख की अभिलाषा and the pride of life. और जीवन का घमंड। Let's come to that third one. आइए तीसरे विषय को देखें।
And Jesus would not allow Satan to come through the gate of selfishness जब यीशु ने शैतान को स्वार्थ के द्वार से अंदर नहीं आने दिया or through the gate of desiring and testing God. या इच्छा और परमेश्वर की परीक्षा करने के द्वार से, Satan tries the remaining third gate, तो शैतान बचे हुए तीसरे द्वार का प्रयोग करने का प्रयत्न करता है, the gate of pride. घमंड का द्वार। As if Satan is saying, जैसे कि शैतान कह रहा हो, okay, Jesus, ठीक है यीशु, you said that the birds have nests and the foxes have holes, तुमने कहा कि पक्षियों के घोंसले और लोमड़ियों के घुरने हैं, but there is no place for the Son of God to lay his head. परंतु परमेश्वर के पुत्र के लिए सिर रखने का भी स्थान नहीं है। Okay, I heard what you said. ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सुना। I am going to make you a deal. मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। Your poverty is over. समझ लो तुम्हारी गरीबी अब समाप्त हो गई। It's not only going to have a place to lay your head, I am going to give you a lot more. ये न सिर्फ तुम्हारे सिर छुपाने का ही स्थान होगा, बल्कि मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक देने वाला हूँ। I am going to give you all the gold in the world मैं तुम्हें संसार का सारा सोना देने वाला हूँ and all of the silver in the world. और संसार की पूरी चांदी। I am going to give you all the trillions and billions of monies in the world. मैं तुम्हें संसार का करोड़ों और अरबों रुपया देने जा रहा हूँ। I'm going to add them to you. ये सब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। I'm only going to ask you to do one small thing. मैं तुम्हें केवल एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। Bow down to me. मेरे सामने झुक जा। I want to explain something to you, my listening friend. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपको विस्तार पूर्वक कुछ बताना चाहता हूँ। When God the Creator created the world, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, He handed over the ruling of the world to Adam. तो उसने संसार का सारा अधिकार आदम को सौंप दिया। He said to Adam, Adam, उसने आदम से कहा, आदम, I'm going to give you the scepter. मैं तुम्हें राजदंड दे रहा हूँ। But when Adam disobeyed God and followed Satan's temptation, परंतु जब आदम परमेश्वर की अवहेलना कर शैतान की परीक्षा में गिर गया, he handed over his scepter to Satan. तो उसने अपना राजदंड शैतान को सौंप दिया। And Satan has been the usurper. और शैतान है ही हड़पने वाला। He has been called the God of this world. उसे संसार का ईश्वर कहा जाता है। He has been a usurper of the world from that moment on. वो उसी क्षण से संसार को हड़पने वाला रहा है। And it has always have been God's purpose to arrest the scepter from Satan's hand and give it to Jesus. और परमेश्वर का हमेशा से यही उद्देश्य है कि वो शैतान के हाथ से उस राजदंड को वापस छीनकर यीशु को दे। And the Son of Man came to die on the cross and to rise again so that he becomes the King of Kings and the Lord of Lords. और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर मरने और फिर से जी उठने के लिए आया ताकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बन जाए। Satan knew about God's plan from the pages of the Old Testament. शैतान को पुराने नियम के पन्नों में से परमेश्वर की योजना का पता था। He heard the prophets to be saying, I give you a new heart and a new covenant. उसने भविष्यवक्ताओं को कहते हुए सुना था, मैं तुम्हें एक नया हृदय और नई वाचा देता हूँ। And Satan knew that the only authority he has is a usurper's authority. और शैतान जानता था कि उसके पास जो एकमात्र अधिकार है वो है हड़पने का अधिकार, A temporary authority. एक अस्थायी अधिकार। So he offered to release that scepter and turn it over to Jesus ahead of time. सो उसने समय से पहले ही उस राजदंड को छोड़ने और यीशु को सौंपने की पेशकश की, Only if Jesus would worship him. केवल तभी यदि यीशु उसकी उपासना करता। This was the climactic temptation that Satan put before Jesus. ये एक मौसमी परीक्षा थी जो उसने यीशु के सामने रखी। First, he wanted him to disobey and satisfy the cravings of the flesh. पहले उसने चाहा कि यीशु अनाज्ञाकारिता करते हुए शरीर की तीव्र इच्छाओं को संतुष्ट करे, But Satan failed. परंतु शैतान असफल हुआ। Secondly, he tried to get him to doubt the word of God and to test God through the eye gate. दूसरा, उसने ये प्रयत्न किया कि उससे परमेश्वर के वचन पर संदेह और आंखों के द्वार के द्वारा परमेश्वर की परख करवाए। But you know, those first two were really incidentals. परंतु आपको पता है कि पहली दो परीक्षाएं वास्तव में गैर जरूरी थी। Satan used these two gates to get to his ultimate prize, इन दो दरवाजों का प्रयोग उसने अपने मुख्य इनाम तक पहुंचने के लिए किया था, to get to the will of Jesus. यीशु की इच्छा तक पहुंचने के लिए।
Is it going to be done your way or is it going to be done God the Father's way? क्या ये आपके तरीके से होने वाला है या ये परमेश्वर पिता के तरीके से होने वाला है? That is the ultimate aim of Satan, ये है शैतान का मुख्य लक्ष्य, is to get you to do things your way. कि आपसे आपके तरीके से काम करवाए। But when you stay up in the high altitude, परंतु जब आप ऊंचे स्थान में रहते हैं, where you have power over Satan, जहां आप शैतान से अधिक शक्तिशाली हैं, you will be sustained by the word of God. तो आप परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर रखे जाएंगे। It means that you believe and that you trust the word of God with all of your heart. इसका अर्थ है कि आप अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास करते हैं। It means that you only worship the Lord Jesus. इसका अर्थ है कि आप केवल प्रभु यीशु की उपासना करते हैं। And when you are in that high place, Satan cannot get to you. और जब आप उस ऊंचे स्थान में हैं तो शैतान आप तक नहीं पहुंच सकता। And whenever I get under attack by Satan, और जब भी शैतान द्वारा मुझ पर प्रहार किया जाता है, I begin by asking myself the question, तो मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछते हुए शुरू करता हूँ, have I been moved from the high place? क्या मैं उस ऊंचे स्थान से हट गया हूँ? Have I lost altitude? क्या मैंने वो ऊंचा स्थान खो दिया है? Because I know that I can have victory when I am soaring high above. क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं ऊंची उड़ान भर रहा हूँ तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ। Because when Satan fails to appeal to the lust of the flesh, क्योंकि जब शैतान शरीर की अभिलाषा को आकर्षित करने में असफल हो जाता है, if he fails to appeal to the lust of the eye, यदि वो आंख की अभिलाषा को आकर्षित करने में असफल रहता है, if he fails to appeal to our pride, यदि वो हमारे घमंड को आकर्षित करने में असफल रहता है, then he is defeated. तो वो पराजित हो चुका है। He was defeated in the wilderness, वो उजाड़ में पराजित हुआ, and he can be defeated by you वो आपके द्वारा भी पराजित हो सकता है। when you are in the shadow of the Lord Jesus Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह की परछाई में हैं। And if you have not been in the shadow of the Lord Jesus Christ, you can come to him tonight. और यदि आप प्रभु यीशु मसीह की परछाई में नहीं रहे हैं तो आप आज रात ही उसके पास आ सकते हैं। He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। He wants you to turn to him. वो चाहता है कि आप उसकी ओर मुड़ें। He wants to give you salvation. वो आपको उद्धार देना चाहता है। He wants to take you to heaven. वो आपको स्वर्ग ले जाना चाहता है। Will you make that decision tonight? क्या आज रात आप ये फैसला करेंगे? Until we see you next time, I'm going to be praying for you. आपसे अगली बार फिर मिलने तक मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा।